Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my students. Dear students, it is me, Pare sir, with 10th biology, and from 10th biology I have chosen unit 2nd of your biology, which is control and coordination in organisms. In control and coordination, my topic for today, it will be coordination and importance of coordination in organisms. Dear students, every one of us know that the body of higher organisms, including man, is formed up of a number of organs. Is formed up of number of organs and organ systems. These organ systems include digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system. These are all organ systems. And every organ system is specialized for performing a specific function in human beings. For example, if we give an example of circulatory system, the circulatory system, it is meant for the life process of transportation, and the organs included in circulatory system are arteries, veins, and heart. These three organs are the main organs which are associated with the transportation system in human beings, therefore forming circulatory system. Every system has a separate function to perform in human beings. Now, how can we define coordination with respect to these systems, or what is the definition of coordination? Let me define. We say that coordination is simply working together of various organs in a systematic manner to produce a proper reaction to the stimulus. It means we have different organs which make an organ system. When these different organs work together in a proper way, in a systematic way, they produce a proper reaction to the stimulus. Now, there exist two things. One is stimulus and one is reaction. Reaction, we can also say, reaction is simply the response. A response of an organism. Now, in this particular definition of coordination, a student or we must know what is stimulus and what is reaction. These are two important things. Stimulus, reaction, or reaction is also known as response. Dear students, when different organs, they work in a proper pattern and they bring about a proper reaction to a certain stimulus. What the stimulus means? Let me also explain the same definition in Urdu as well as in our native language. हम ये भी कह सकते हैं वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. जब बहुत से ऑर्गन्स हमारी बॉडी के एज़ा एक तरतीब से काम करें, हमारे अंदर एक तरतीब से, क्योंकि आवर ह्यूमन बॉडी, इस पे बहुत सारी रिएक्शंस आ जाती हैं अंदर से ही और स्टिमुलस भी प्रोड्यूस होते हैं. अब हमारी बॉडी को एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक तरीके से, मतलब हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एक तरीके से प्रॉपर रिएक्शन टू ए स्टिमुलस. किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ एक प्रॉपर रिएक्शन देती है. किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ प्रॉपर रिएक्शन देना हमारी बॉडी के अंदर से, इस फिनोमिनन को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स. अब कोऑर्डिनेशन, इसका फ़ायदा क्या है? कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा हमारी बॉडी का? The main function of coordination, the main importance of coordination is in human beings, in animals. It produces that, it maintains that, we call that physiological equilibrium, or physiological equilibrium is also known as homeostasis. हमारी बॉडी में एक किस्म का ये हम बोल सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो हमारी बॉडी में बैलेंस प्रोड्यूस नहीं होगा. जब बैलेंस प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारी
बॉडी जो है दैट विल बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट फैशन, इन अ वेरी डिफरेंट वे. So it is very important for our organ systems to work in a systematic manner. एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें ताकि प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर स्टिमुलस को एक प्रॉपर रिएक्शन दिया जाए, जिससे क्या होगा, जिससे मेंटेन होगा हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस. चलिए एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूं. उससे पहले मैं डिफाइन करता हूं आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है. When we define stimulus, we state it is any change. अब ये चेंज दो तरीके से होगी. और मैंने पहले ही बताया, already told students that our body, it may go through various types of changes. These changes may be coming from the external environment, or they may be present within the body of an organism. External changes or internal changes, which actually alter from in which come from environment of an organism that initiate response. एक तो हो गई external changes और हो गई internal changes. Internal और external changes जो इनिशिएट करेंगी रिस्पॉन्स किसी ऑर्गेनिज्म में. स्टिमुलस चेंज होती हैं, आप याद रखेंगे. वो चेंज एक्सटर्नल चेंज भी हो सकती हैं या इंटरनल एनवायरनमेंट होगा ऑर्गेनिज्म का, दैट इनिशिएट्स रिस्पॉन्स, जो उठाएगा, जो इनिशिएट करेगा रिस्पॉन्स को, बॉडी के अंदर से रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगा. अब ये पूरा फिनोमिनन इट इज़ टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो टू थिंग्स आर देयर, दो चेंजेस होंगी, या तो एक्सटर्नल चेंज होगी या इंटरनल चेंज होगी, जो बॉडी के बाहर से चेंज आएगी, ठीक है ना, या बॉडी के अंदर से, अंदर के माहौल से कोई चेंज होगी, जिससे क्या इनिशिएट होगा, जिससे रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा. उस चेंज को हम स्टिमुलस बोलते हैं. अब जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का, रिस्पॉन्स विल बी सिंपली द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस. इस स्टिमुलस के खिलाफ जो बॉडी का रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम रिस्पॉन्स बोलते हैं. अब ये स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स जब ये कंप्लीटली बॉडी में होगा, इससे बॉडी का मेंटेन होता है होम्योस्टैसिस. मैंने पहले ही बोला फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर जब स्टिमुलस बॉडी में क्रिएट होंगी, जब चेंजेस क्रिएट होंगी तो रिस्पॉन्स आ जाएगा. और जब रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंप्लीट हुआ, बॉडी ने रिएक्शन दिया किसी स्टिमुलस के खिलाफ, तो क्या होगा, बॉडी का बैलेंस मेंटेन होगा, होम्योस्टैसिस मेंटेन होगा. ये मतलब इसका बिहेवियर बिल्कुल ठीक रहेगा. अब चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. हाउ कुड वी डिफाइन दिस कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. हम क्रिकेट की बात करते हैं. देयर आर 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन क्रिकेट: आइज, योर ब्रेन, योर मसल्स. देखिए अब इनमें क्या होता है, वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑल द 3 organs, eyes, brain and muscles, they basically work together in a coordinated manner, in a systematic manner. ये तीनों सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर स्टिमुलस के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले. अब चेंज क्या होती हैं, हमारी आइज़ जो होती हैं, बेसिकली वाइल वी प्ले क्रिकेट आवर आइज़ दे ऑब्जर्व क्या करते हैं. चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ. कोई बैट्समैन यहाँ पे खेल रहा है, तो वहाँ से बॉलर ने बॉल फेंका. बैट्समैन की आइज़ इस बॉल को क्या कर रही हैं, दे ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व कर रही हैं. जब इसको ऑब्जर्व करा, ठीक है ना, अब ऑब्जर्व करके इस पर्टिकुलर मैसेज को ब्रेन में डाला है, ठीक है ना. अब ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन एनालाइज करेगा इसको. जब ब्रेन ने एनालाइज करा तो उसी हिसाब से ब्रेन की तरफ से एक रिएक्शन आएगा जो रिस्पॉन्स की सूरत में होगा, जो मसल्स करेंगी. अब बैट्समैन पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व क्या किया, एनालाइज क्या हुआ, और मसल्स ने कौन सा रिस्पॉन्स दिया. अब अगर बॉल, जैसे बॉल कोई बाउंसर आ रहा है, वहाँ से बाउंसर फेंक रहा है, तो आइज़ ने ऑब्जर्व किया, ब्रेन ने एनालाइज करके मसल उसको ऑर्डर किया, ना स्ट्रोक ना मारो, नीचे बैठ जाओ. तो ये पूरा डिपेंड करता है इन तीनों ऑर्गन्स पे. ये आइज़, ब्रेन और मसल्स, ये एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं. इस मिलजुल के काम करने के फिनोमिनन को हम बायोलॉजिकली कह सकते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन. अब क्या हुआ, अगर ऐसा ना होता, लेट्स सपोज अगर आइज़ ठीक से ऑब्जर्व नहीं करती, ब्रेन एनालाइज नहीं करता, मसल्स रिस्पॉन्स ना दें,
तो क्या होगा, हमारी बॉडी का होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। एक और एग्जांपल है, चलिए सपोज करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, या हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज ऑल ऑफ ए सडन हमने किसी हॉट बॉडी को टच किया, हॉट बॉडी को टच किया। जो ही हम हॉट बॉडी को टच करते हैं, हम हाथ उठा देते हैं वहाँ से। तो ये क्या हुआ, जो वो हॉटनेस होती हैं वो स्टिमुलस होती हैं, एक चेंज होती हैं, ठीक है ना। उस चेंज से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इनिशिएट होता है रेस्पॉन्स, हम जल्दी से रिएक्ट करते हैं, हम हाथ उठा देते हैं। अगर हम हाथ ना उठाएं तो क्या हो सकता है, हमारा हाथ जल सकता है, इट कुड बर्न। सो अगेन देयर इज कोऑर्डिनेशन, आई एम एक्सप्लेनिंग यू कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इज इट्स द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जब हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स, बहुत सारी ऑर्गन्स एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक खास तरतीब से क्या करें, प्रोड्यूस ए प्रॉपर रिएक्शन, एक खास रिएक्शन दें किसी स्टिमुलस के खिलाफ, उस फिनोमिनन को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन का ये फ़ायदा है, इसे मेंटेन होता है बॉडी का फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, या जिसे हम होमोस्टेसिस कहते हैं। अब जो स्टिमुलस दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो एनवायरमेंटल फैक्टर से आता है, जैसे हीट होती हैं, लाइट होता है, साउंड होता है, इससे इनिशिएट होता है रिस्पॉन्स। इसी तरीके से इंटरनल स्टिमुलस में ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर से होता है, जैसे कोई हार्मोन से होता है इंटरनल स्टिमुलस क्रिएट, एसिड से होता है, एंजाइम से होता है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हंगर। हंगर इट्स एन इंटरनल स्टिमुलस, इससे इनिशिएट क्या होगा, एक रिस्पॉन्स होगा इनिशिएट फॉर फूड। ह्यूमन बींग और एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड, क्योंकि अंदर से इसका स्टिमुलस जो आ रहा है वो हंगर का है। हंगर एक्टिवेट करेगा कुछ खास रिसेप्टर्स को, कुछ खास सेल्स को, जिससे आपको इनिशिएट करेंगे, आपके अंदर एक रिएक्शन आएगी, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फूड। इसी तरीके से थर्स्ट, ये भी एक तरीके का स्टिमुलस है। जब थर्स्ट बहुत प्यास लगेगी तो एक ऑर्गेनिज्म जाएगा टू ड्रिंक वाटर। आई होप you had understood. Inshallah, we will be taking next topic in the next video. Thank you.